السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ سورہ انعام آیا نمبر 19 تک ہوا تھا، 20 سے تلاوت کر لیں گے چند ایک آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ وہ 21ویں آیت، ہاں 21ویں آیت، ہاں 20 پڑھنا۔ کرنا ہے سنی۔ ہاں ہاں ماں۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ میم جب آتا ہے تو روک دینا، ورنہ مطلب چینج ہوتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں تک روکیں گے، اس کی تفصیل دیکھیں۔ پچھلی آیت ہماری جو 19 ہوئی تھی وہ کلیئر ہوا کیا؟ تھوڑی بڑی آیت ہے اور تھوڑا مشکلات القرآن میں بھی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے 19ویں آیت؟ کچھ وحدانیت کا بیان ذرا دور دیکھو بتا کو ہے اللہ کا۔ ہاں سمجھ میں آیا ہے نا کیا وہ؟ تمہیں ہاں معلوم ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں پھر بتا دیتی ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بات کی ایو شیئن بول رہا ہے نا، کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے یعنی اللہ کی وحدانیت کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو۔ اور حضور سے کہہ رہا ہے اللہ کے کہو اللہ اور وہی، یعنی دو بار آ گیا ہے تو زور دیا جا رہا ہے اللہ اور وہی، یعنی اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تنبیہ کروں، وان کروں، اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ اس کا مطلب کیا؟ ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا مطلب اس کا؟ تمام کے واسطے بھی قرآن نے گواہی ہے، آخر تک، آخر تک رہتی دنیا تک،
क्योंकि हुजूर तक रिसालत का, नबूवत का यह खत्म हुआ, हुजूर तक खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन रिसालत का कंटिन्यू हो रहा है। रिसालत आप तक रही, उसके बाद आपके बाद शिफ्ट हो गई है। बारे रिसालत हमारे कंधों पर, मोमिनीन के, मुस्लिमीन के, तमाम मुसलमानों के कंधों पर आ गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सबको ये दिखाएं। तो यहाँ इनसे एक आंखों में आंखें डालकर, जैसा एक सर्चिंग क्वेश्चन होता है ना, गैर यकीनी अंदाज में ये जो कह रहे हैं, क्या इन्हों गैर यकीनी अंदाज में कह रहे हैं? नहीं, यकीन के साथ, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रही, शिर्क कर रही। अब ये मालूम करना, इनके दिलां से उखुस करना का तो कैसा करना, एक अंदाजे तकल्लुम अल्लाह कह रहा है, क्या सचमुच, क्या वाकईतन तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? वाकई तुम कह सकते हो ये? कहे तो फिर अल्लाह ही कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। और मजीद कह दो उनसे कि वो तो सिर्फ एक खुदा है, और जिन जिन चीजों को तुम उसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो, मैं इन सब से बेजार हूँ। यानी ये ऐसा करना ही नहीं है, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट आयत है 20। 18 19 से शुरू करना। 19 हो गया ना, हाँ 19 हो गया। 20वां आयत अब 20 से शुरू करना। पुराना अल्लाज़ीना 20वां आयत है। इसमें क्या है, किताब के मुताल्लिक है, किताब जो दी गई है उसको सब पहचानती, सबको मालूम हो रहा है, मुशरिकीन को भी मालूम हो रहा है, कुफार को भी मालूम हो रहा है, और इतना अच्छा मालूम हो रहा है जैसे कि अपने बच्चों को, अपने बच्चे एक 10-20 बच्चों में रहे तो कैसा पहचान लेती, हम हमारे बच्चों को हम पहचान लेते। खास तौर से बेटों की बात हो रही है, बेटों को तो हर हमेशा और वो पहचान लेती, एक 10 में, 20 में, 40 में, कितने भी मजमुए में हो, अपने बच्चों को तो पहचान लेती ना। वैसा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किताब को ये ऐसा पहचानते ही, जैसा मजमुए में कोई खड़ा हुआ हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजारों के मजमुए में भी पहचान सकती, उस तरीके से ये पहचानती, लेकिन नहीं दिखाते, छुपाती। वो यारिफूना, वो जानते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, वो ज़मीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। कमा, जैसा के, यारिफूना, वो जानते हैं। अब ना, इब्न की जमा अब ना, बेटे, हम ज़मीर उनके बेटों को। अल्लज़ीना खसीरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जिन लोगों को हमने किताब दी है, अल्लाह कह रहा है ये या कौन है, उलमा यहूद की तरफ है, ये उलमा यहूद की तरफ, जिन लोगों को हमने किताब दी है, उलमा यहूदी और नसारा भी, जिनको इंजिल दी गई है, वो इस बात को इस तरह यकीनी तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई इश्काल, कोई मुश्किल नहीं पेश आती ना, इस तरीके से पहचानती। मगर जिन्होंने कुछ बताया आपने, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया हो, वो उसे नहीं मानते, उन्होंने खुद अपने आप को खसारे में डाल दिया है। अब इसका लफ्जी तर्जुमा देख लीजिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो, आते दिया ना हमने, हम उनको, अल किताब, तौरात और इंजील जो दी है, यारिफूना, ये मुजारे का सीखा है, वउनून आया तो जमा का सीखा है, वउनून यानून आया तो भी जमा का सीखा है, मगर यानून कई को आता है बोले तो कोई हरफे जर आता है, अला, इला, फी, ये सब है ना, हरफे जर आया तो मजरूर हो जाता है, उसके वास्ते यानून आता है। वउनून आया तो ये सालिम है, जमा मुजक्कर सालिम है, वो यानून भी सालिम है, लेकिन वो यानून इसलिए होता है कि जैसा मोमिनीन, मुत्तकीन, ये सब इसलिए होता है कि उससे पहले एक आमिला हरूफ होता है जो असर अंदाज होता है उसके ऊपर है, और उसे मजरूर कर देता है, जर में दाखिल कर देता है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूना, वो पहचानते ही, कमा का मिसल मा, जो, जिसे, कमा, जैसा के, यारिफूना, वो पहचानते हैं, अब ना, बेटों को, हम, अपने बेटों को, उनके बेटों को हम बोलेंगे, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा, अपने बेटों को जैसा पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसीरू अनफुसहुम, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, खसीरू, खसारे में डाला, खुद ही खसारे में डालनी है, खुद ही पाँव रखकर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, उसमें गिर रहे हैं,
तो क्या कर सकती, उनको कौन बचा सकती? अपने आप को। फहुम, सो वो ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाने वाले। उन्होंने खुद ही अपने वास्ते नुकसान का, खसारा उठाने का सामान खुद ही पैदा कर ले रहे। अच्छी आयत आ रही हैं, समझते हैं, उलमा यहूद की तरफ इशारा है, उनको मालूम है। इब्ने सलाम, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ला लिए ना, तो उनको हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आपको किस बात ने ये तरगीब दी, कैसा आप इस्लाम की तरफ आए? हजरत उमर फारूक पूछते हैं, तो उन्होंने बताते हैं कि सारे सिफात बयान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सिफात हमारी किताबों में बयान है, वो बहु पूरे उतरती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी छोटी चीज भी उनके मुताल्लिक बताई गई है, हालात भी बताए गए हैं, उनके पैदाइश भी बताई गई है, उनकी कैसा रहती, उनका हुलिया भी बताया गया, उनके सिफात औसाफ भी बताए गए हैं। तो हमें कोई इश्काल नहीं है पहचानने में, सब पहचानती, सारे उलमा पहचानती। तो यहाँ अल्लाह क्लियरली उन लोगों के सामने भी डंके की चोट पर कह रहा है, ऐसे पहचानती जैसे अपने बेटों को पहचानती। बेटों को पहचानने में तो तुम्हें कोई इश्काल है ही नहीं, कोई इश्तबा है ही नहीं, तो इस तरह पहचानती है लोग, कोई इश्काल नहीं है। तो फिर भी अगर खसारे में, फिर भी अगर नहीं मानते, तो उन्होंने खुद है खसारे में पड़ने वाले, खुद को मुसीबत में डालने वाले, अपने आप कुल्हाड़ी मारने वाले, पांव रखकर कुल्हाड़ी मारने वाले उन्होंने खुद हैं। ऐसे लोग ईमान नहीं लाने वाले, ये हुजूर को तसल्ली दी जा रही है। ये लोग नहीं लाते ईमान, तो आप अपना काम कीजिएगा, दूसरा इन लोगों के मुताल्लिक उतना बॉदर करने की जरूरत नहीं। ये क्यों ईमान नहीं लाते, मेरी तालीमात में क्या कभी कमी का कोताही रह गई है क्या, मेरी तरफ से कोई गफलत हो गई है, ऐसा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना काम बराबर करें। यासीन में कह रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप जरूर मुरसलीन में ही, और अपना काम आप इन्हमाक से कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई हमें शुबह की जरूरत नहीं है। आप खुद को इतना फिक्रमंद ना कीजिए इन लोगों के मुताल्लिक, ये नहीं ईमान लाने वाले, पहचानते हैं फिर भी ईमान नहीं लाते, तो ये उनका हेडेक है, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों को हमने किताब दी है, वो इस बात को इस तरह यकीनी तौर पर पहचानते जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। कितने ही मजमुए में खड़े हो, अपने बेटों को तो पहचान लेते हैं, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद ही मुश्किलात में या खुद ही खसारे में डाल दिया है, वो उसे नहीं मानते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिहि इन्नहु युफ्लिहु ज़ालिमून। मन और कौन, यहाँ क्वेश्चन है, ये कभी कभी जो में भी आता है, मगर यहाँ क्वेश्चन है, कौन है? अज़लमा, सबसे बड़ा, अज़लम इस्म तफसील का सीगा है, अकबर, अफजल इस्म तफसील का सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ा जालिम कौन है? मिम मनिफ्तरा, मिन और मन का कॉम्बिनेशन है, मिम मनिफ, इस उससे जो, इफ्तरा बहतान बांधना, बहतान और गीबत में फर्क है नहीं। हाँ बहतान जी, क्या होती है? इल्जाम लगाना नहीं, हाँ? बहतान इल्जाम लगाना। इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। हम्म, गीबत क्या बोले तो पीठ पीछे बात पीछे करना, पीछे लेकिन उनमें है वो बुराई, वो बात करना, है सो बुराई भी नहीं बोलना ना। अल्लाह जी, सत्तार है, उसकी शान सत्तारी है, हमारे बुराइयों को भी कितने ही बुराइयां हमारे में हैं, लेकिन अल्लाह छुपाए हुए है, सबके सामने तो हम ना रुसवा नहीं करे अल्लाह। तो अल्लाह की ये शान सत्तारी है, और अल्लाह हमारे से भी एक्सपेक्ट करता है कि किसी की बात किसी के सामने ना खोले, कोई बात नहीं बोलना, किसी की मजमे में नहीं बात करना, अगर इस्लाह करनी है तो उसे बुलाना, सरगोशी में बयान करना, किसी दूसरे के सामने डंके की चोट पर या अलानिया नहीं बोलना है। तो ये गीबत है। गीबत क्या बोले तो उसमें बुराई है, वो झूठा है या कोई गलत काम करने वाला है वो, लेकिन फिर भी लोगों के सामने उसे बयान करना, उसके पीठ पीछे बयान करना, सामने नहीं, पीठ पीछे बयान करना। सामने बोले तो अलग बात हुई, लोगों के सामने बोलना वो भी गलत है, इस्लाह करना तो उसे अलग बुला को करना। बहतान वो चीज है जो नहीं होती किसी में, लेकिन इल्जाम तराशी, इल्जाम करना। अब अल्लाह के मुताल्लिक बहतान कर रहे हैं, अल्लाह के मुताल्लिक क्या बहतान कर रहे हैं? अल्लाह एक नहीं, अल्लाह की वाहिदानियत नहीं, बहुत से हैं उसके साथ, तो बोले तो ये इल्जाम है ना, ये अल्लाह पर गलत है ना, झूठ है। अल्लाह एक ही है, आगे बोल रहा है इलाहुं वाहिद, वो एक ही है, उसके साथ कोई नहीं है, उसका शरीक कोई नहीं है, वो किसी को डेलीगेट करके नहीं है, वो किसी को डेप्यूट भी करके नहीं है,
कोई नहीं है उसके साथ। वो मन असलमो कौन, उससे ज्यादा जालिम हो सकता है, मिम मन इफ्तरा, जो इफ्तरा करता है, घड़ता है, अल्लाही, अल्लाह पर, कज़िबन, झूठ गढ़ता है, औ कज़्ज़बा बिआयातिही, या उसके उन्हें जो नाजिल करता है उसके उस आयत को झुटलाता है। कज़्ज़बा झुटलाना, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, झुटलाना, आयत को झुटलाना। ये आयत अल्लाह से नहीं उतरी, या आपने घड़ लिए, या कोई और आपने कर लिया है, इसमें झुटलाते हैं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यकीनन ये लोग ऐसे जालिम कभी भी फलाह नहीं कामयाबी नहीं पाते। पाते। कामयाबी भी हो सकता है। फलाह उर्दू का ही वर्ड है, युफ्लिहु जी ज़ालिम, युफ्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिमून, इन्न शिरका लज़ुल्मुन नज़ीम। जालिम कौन है? जो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, वो जालिम है। जालिम। जालिम बोले तो क्या बोले तो जुल्म करना, जुल्म इस मानी में के अल्लाह को जो हक देना है, बंदगी का हक, अल्लाह के बंदे हम हैं तो बंदगी का हक अदा करना है। अल्लाह को, अल्लाह की बंदगी के जो हुकूक हैं उसके, वो पूरा करना है। अल्लाह के तालीमात पर पूरा चलना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, सरकशी नहीं करना, ज्यादती नहीं करना, नाफरमानी नहीं करना, ये अल्लाह के हुकूक है। इसमें अगर डंडी मारता है, कोई कोताही करता है, उसमें कमी बेशी करता है, बोले तो जुल्म कर रहा है, अल्लाह के हुकूक में जुल्म कर रहा है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है वो, क्योंकि ऐसा करने से जहन्नम में जाता है। नेक्स्ट, आसान ही है आया ये। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून। आगे भी, इससे पहले भी आ चुका है ये। अल्लाह पूछेगा किससे? ये मुशरिकों से, यही कंटिन्यूएशन है ये। मुशरिकों से अल्लाह पूछेगा कि यौमा, जिस दिन, वो दिन, नहशुरुहुम, जब हम उनको जमा करेंगे। नून आया तो क्या है ये? मुजारे का सीगा है, आखिर सीगा, आखिरी सीगा। हम जमा करेंगे, या शुरू तो शुरू, ना शुरू, आ शुरू, ना शुरू, ये ना शुरू है। जमा करेंगे हम को, हम उनको, उस दिन, जमीयन, सब के सब, पूरे के पूरे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक 40 साल की उम्र होगी, बच्चे तो नहीं पैदा होंगे, 40 साल पहले पैदाइश स्टॉप हो जाएगी, क़यामत के 40 साल पहले। तो शायद एक निशानी भी होती होंगी कि बच्चे पैदा नहीं होते, ना अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं होता। 40 साल का इंसान होगा मिनिमम उम्र, जिसके ऊपर क़यामत आएगी, छोटे बच्चों पर नहीं, छोटे बच्चे नहीं होंगे। सुम्मा, फिर नक़ूलु, हम कहेंगे, ये भी मुज़ारे का सीगा है, सिंगुलर का, वाहिद का, मुज़क्कर का। हम कहेंगे लिल्लज़ीना, उनसे, उनको, जिन्होंने, अशरकू, अशरका युशरिकु इशराक बाब इफ़ाल से आता है, और ये मत आ गई है तो इस पर जोर दिया जा रहा है कि जो भी शिर्क किया है, हमारे साथ किसी और माबूद को दाखिल किया है अपने सिफात उलूहियत में, तो उनसे हम कहेंगे, नकुलु, हम कहेंगे, आईना, आईना ज़र्फ है, कहाँ, शुरकाउकुम, तुम्हारे शरीक, यानी जिनको तुम हमारे साथ शरीक करते थे उलूहियत में, माबूद होने के जिमन में, जिनको भी तुम शरीक करते थे, कहाँ है वो? अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, जिनका कुंतुम, तुम थे, तज़ुमून ज़अम, ज़अम से है ये, उर्दू में ज़अम है वर्ड, इसका मतलब क्या? दावा करना। दावा करना। हो, इन्हों भी हैं, इनके पास भी कुछ पावर है, इन्हों भी हमारी सिफारिश कर सकती हैं, या कुछ काम हमारा भी कर सकती हैं, हमारी बिगड़ी बना सकती हैं, जैसा कि हमारे लोग कहते ना, औलाद यहाँ होती है। एक वाकया आता है, 19 साल, कहाँ आया था ये वाकया? 19 साल अल्लाह से मांगता है, उम्रे हज वगैरह करता रहता है, जाकर उम्रों में भी मांगता है, हज में भी मांगता है, औलाद नहीं रहती उसे। 19 साल होने के बाद कोई और बोलता है वली अल्लाह का कुछ कर रहे, कुछ किसी वली अल्लाह का नाम आ रहा है, मुझे याद नहीं रहा, तो उसका कर बोलता है। तो 19वें साल क्या करता है, उन्हें वली अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। अब शिर्क में मुब्तला हो गया, अल्लाह आजमाइश में डाल रहा है, 19 साल सबर करया, अब भी सबर कर लेता,
लेकिन उन्हें शिर्क में मुब्तला हो गया। वो फिर है ना वली अल्लाह की तरफ, वो जो भी खबर परोसी है, ये जो भी ये लोग शिरकिया काम करती है उसमें हो गया, और उसे एक बिल्कुल। बेटा मिल भी गया, उसे एक बेटा मिल भी गया। तो उसके मुताल्लिक कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि सरी गुमराही में पड़ गया, उसे आजमाइश में डाल दिया अल्लाह ने, शैतान ने उसे बहकाया और वो उसके बहकावे में आ गया। वेट करता, अल्लाह से पूछता, अल्लाह से मांगता, उसके बाद वो बच्चे के साथ क्या होने वाला है, अंजाम क्या हो सकता है। शिर्क में मुब्तला हुआ था, आजमाइश में मुब्तला कर डाला है अल्लाह, वल्लाहु आलम। जिस रोज हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब तुम्हारे ठहराए हुए, तुम्हारे जो करार दिए थे तुम शरीक मेरे साथ, कहाँ ही हो, जिनको तुम अपना खुदा समझते थे। अल्लाह पूछेगा उन लोगों से। ये बहुत बार आ भी चुका है, अब भी रिपीट हुआ है ये, क्योंकि मुशरिकीन मक्का से ये गुफ्तगू चल रही है, खिताब उन लोगों से है हुजूर की वसातत से। तो जोर दिया जा रहा है कि कुफ्र नहीं करना है, शिर्क से बचना है, को ये वहदानियत पर, रिसालत पर और आखिरत पर, ये तीन चीजों पर जोर दिया जा रहा है मक्की सूरतों में। और हमें मालूम है कि कितना पार्ट ऑफ कुरान नाजिल हो गया मक्की दौर में, कितना हिस्सा कुरान का, कितना हिस्सा, आप पौना नहीं, हाँ 2/3, 2/3, 2/3 ना। हाँ 2/3 नाजिल हो गया। तो बहुत सा आ गया इसमें। बाद में वो अहकामात का इस्तेहकाम वो आया मदनी दौर में, वो 1/3 ही है वो। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। पिछली आयत में आई कि हम सबको जमा करेंगे, सबसे पूछेंगे कहाँ गए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते थे, कहाँ ही भाई तुम्हारे माबूद, वो वली अल्लाह, ये वो जो भी थे, जो भी मकबरे पे तुम जाते थे या जो भी बुत्ता बनाते थे, उन लोगों से, गैर अक़वाम से पूछेगा अल्लाह कहाँ है, क्या है उनका, अब क्या जोर है, तुम्हें बचाती क्या वो, ऐना शुरू का हुक्म। अब ये बौखला जाएंगे, नहीं है वो, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है, सब अकेला खड़ा है, किसी का कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। बाद में सिफारिश का ही आएगा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, या जिन जिन को भी अल्लाह इज़्न देगा। कोई रिवायतों में आता है हाफिज भी करेगा, आलिम भी करेगा, जिन जिन को इज़्न देगा अल्लाह, जिनको जिसकी शफाअत की, जितने लोगों की शफाअत की देगा इजाजत, वो उतना ही कर सकेंगे, सबकी नहीं। तो यहाँ ये लोग बौखला जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह अनकालू वल्लाही रब्बिना, ये वो क्या है, वो और है कि क्या है, वो वतफ है क्या, वतफ बोले तो और अखरा नहीं, वो वल्लाही कसमिया है, हाँ, कसम खाकर कहेंगे, वल्लाही खसन अल्लाह की, अल्लाह के कसम, या अल्लाह तेरी कसम है परवरदिगार, ऐ हमारे रब, रब्बिना भी आ रहा है दो बार, वल्लाही अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब। बौखलाहट उनकी, झूठ बोल डालेंगे, शुरू में तो वो बौखलाहट के आलम में झूठ बोल जाएंगे, नहीं अल्लाह हम नहीं करे, शिर्क नहीं करे। लेकिन फिर यहाँ एक और आयत में, किसमें, सूरा यासीन में भी एक आयत आ रही है, और सूरा हामीम सजदा में भी एक आयत है, जिसमें बताया गया है कि खुद उनके हाथ पांव उनके खिलाफ गवाही देंगे। गवाही देती। शिर्क करे इन्हों, मंदिर को गए या मस्जिद को गए या खबरस्तानों को गए या मकबरों को जाकर इन्हों वहां मांगे, नजराने चढ़ा इन्हों, कौन देंगे, उनके हाथ पांव उनके आज़ा गवाही देंगे, गवाही देती। और उनका सारा झूठ खुल जाएगा। इनकी जबान बंद कर देता ना अल्लाह, पहले बयान करती इन्हों, लेकिन ना अल्लाह इनकी जबान बंद कर देता है। अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून वो हो गया था। अब ये सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुंतुम मुशरिकीन, उसके मुताल्लिक चल रहा था नहीं। पहले तो वो जी कह देंगे कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, फिर उनके हाथ पाँव अल्लाह बंद कर देगा जबान में, इनकी जबान बड़ी चलती रहेगी, अल्लाह बंद कर देगा, फिर इनके हाथ पाँव सब कुछ इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ गवाही देंगे। ये बहुत से आयतों में भी आ रहा है, जो मैंने कहा कि सूरा यासीन में भी है, सूरा हामीम सजदा में भी है,
और आगे चलकर एक और आयत में भी इसमें भी आएगा, इस सूरत में भी आएगा, और उनका सारा झूठ वहां उनका पोल खुल जाएगा। पीछे भी यह आयत गुजरी है कि वो कोई छुपा नहीं सकेंगे। और आगे इसी सूरत की आयत नंबर 130 में आ रहा है। 130 में भी फिर ये मजमून आता है कि वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे, वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। पहले तो बोल देंगे नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने सिर्फ किया ही नहीं। फिर ये बोखलाहट में कहेंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या जवाब देना, अल्लाह सवाल कर रहा है, अल्लाह जल्लो शाना उसकी शान उसकी क्या होगी, उसका जलाल क्या होगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, झूठ बोल जाएंगे। फिर गवाही देंगे उनके उसी के आजा, उनके ही आजा, और वो खुद बाद में आखिरी आयत में आ रहा है 130 में आता है आखिर में कि वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। हाँ अल्लाह हमने मान लिया तो मान लेंगे, वो मान लिया तो क्या हो गया, हुज्जत तमाम हो गई, विटने गवाही मिल गई, खुद से उनसे गवाही मिल गई, तो अब क्या हो गया, उन्होंने मुस्तहक हो गए अजाब के, नहीं अजाब के जी मुस्तहक वो खुद हो गए। अब अल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये करे तुम्हें जाना है इस जन्नत में करको, उन्होंने खुद इकरार कर लिया। तो ऐसा हुज्जत तमाम करके अल्लाह उनको मुस्तहक दोज़ख मुस्तहक जन्नम करार देके झोंका जाएगा उन्हें। उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अल्लाह हमसे कह रहा है, सबसे कह रहा है कि देखो इस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ घड़ेंगे। बोल दिया ना वल्लाहि रब्बिना, आए परवरदिगार, आए अल्लाह तेरी कसम अल्लाह, नहीं बोला हमने, नहीं किया हमने, शिर्क नहीं किया। अल्लाह कह रहा है देखो इन लोगों की तरफ उस वक्त ये किस तरह अपने आप पर झूठ घड़ेंगे, खुद के खिलाफ झूठ बोल रही, किया उन्होंने शिर्क लेकिन अब साफ तरीके से झूठला रहे हैं, और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। उनजुर नजरा यंजुरू का फेले अमर है, और ये कौन सा सीगा है, देखिए। वाहिद का सीगा है, देखो 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 कैफा कैसे, कज़बू उन्होंने झूठ बांधा, कज़बू कज़बा कज़बा कज़बू, कज़बा उसने झूठ कहा अकेला, कज़बा अलिफ के साथ आ गया, कज़बा काफ जाल बा, और ये कज़बा बा अलिफ के ऊपर जबर आ गया तो तस्निया का सीगा हुआ, दोनों ने उन दोनों ने झूठ कहा। अब ये कैसा आ रहा है, वो अलिफ आ गया तो जमा का सीगा हुआ कज़बू, उन सब ने झूठ बांधा। देखो कैसा इन्होंने सब झूठ बांध रहे हैं, कैसा झूठ बोल रहे हैं, अला अनफुसिहिम अपने ही आप पर, अपनी ही जानों पर, वो दल्ला और खो गए, दल्ला गुमराही को भी बोलती और नहीं दिखने को भी बोलती, अनहुम उनसे, माँ कानू बात यफ्तरून करना, जो बातें इन्हों बनाते थे उन्हों कैसा उनसे खो गए, यानी अब क्या भी उनको उसका ये सुराग ही नहीं मिल रहा है, सब खत्म हो गया। देखो उस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ घड़ेंगे, और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। अब ये जो भी है उनके बुत्ता हैं, उनके ये जो हजर शजर तांबे के बनाती, लकड़ी के बनाती, पत्थर के बनाती, इनो सब गुम हो जाती हैं, कोई उनके सामने नहीं रहता, सबको उठा को अल्लाह इनके सामने जहन्नम में डाल देता है। क्यों डालता है, वो भी ईंधन है, जहन्नम का ईंधन है, पत्थर भी ईंधन, लकड़ी भी ईंधन, इंसान भी ईंधन। ईंधन बोले तो क्या, चीज। फ्यूयल फ्यूयल फ्यूयल। अब हमारे चूल्हे का ईंधन क्या, गैस, हाँ, या थोड़े केरोसिन में भी जलाती, या थोड़े लकड़ी में भी जलाती, दैट इज फ्यूयल। ईंधन बोले तो फ्यूयल। जहन्नम का ईंधन क्या, इंसाना भी, पत्थर भी, शजर भी, ये जो भी इन्हों रख ली सब भी। पत्थर ईंधन बोले तो बहुत खराब जलता है वो, हाँ, पत्थर का जो ये जलता है अंगार जो होती है वो बहुत देर रुकने वाली। वो मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक, और इनमें से कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनमें से मैं यस्तमिउ, इस्तमा यस्तमिउ, आप सोच सकते हैं कौन से बाप से होगा ये, पास्ट टेंस, इफ्ताला, पास्ट कान बाब लगाया बाब, था। इफ्ताला यफ्ताइलो,
इस्तफ़अला यस्तफ़इलु लगाता था, मतलब लगा नहीं, था। इस बाप से आता है बात जिसमें जोरे बयानी होती है, जोरे बयानी, हाँ, ज्यादा जोर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल समिया यसमाऊ बोला तो सुनना, बस सुनना, समिया हाँ। उसने सुना, यसमाऊ वो सुनता है या सुनेगा। ये यस्तमिउ यानी हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? पास्ट All yes, I am all yes. Okay, tell me, I am all yes. That means I am concentrating totally upon you. I am hearing you. I am listening to you with full concentration. No other deviation. इधर उधर कहाँ भी मेरा ख्याल नहीं है. I am all yes. इंग्लिश में all yes बोलती है। और उर्दू में एक वर्ड है हमातन गोश, ये फारसी है लेकिन उर्दू में बहुत ज्यादा यूज होता है, मुहाविरतन यूज होता है। क्या कहने के लिए? सर तापा कान बन गया, मेरा पूरा वजूद कान बन गया। आई एम ऑल यस कर बोले तो क्या? मेरा पूरा वजूद कान बन गया, यानी टोटली आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग, आई एम हियरिंग यू, माय फुल कंसंट्रेशन इज टुवर्ड्स यू। वो मतलब यहाँ बयान करना है। क्यों बयान करना है? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपने जो ये हैं, अपने जो कबीले के लोग हैं, वो लोग कहते थे, थोड़ा इश्काल होता था कि क्यों हमारे सरदार जो इंटेलिजेंस हैं, हमारे दानिश्वर हैं, या क्रीमी लेयर हमारा है, जानने वाले, समझ बूझ रखने वाले, क्यों नहीं जाते, हुजूर से बात क्यों नहीं करते, उनकी तालीमात क्या है आखिर देखें तो सही, जाते नहीं ना क्यों? तो इन्हों क्या करते, एक उनका दिल उनके आंखों में धूल झोंकने के लिए और उनको झांसा देने के लिए, उनका जबान बंदी करने के लिए क्या करते थे, बहुत अच्छा इन्हेमाक से हवा हवा आन बान बहुत अच्छा तैयार होकर आ जाते, हुजूर के साथ रहते, सुबह से शाम तक रहते, पूरे नमाजा पढ़ते, हमें वो सारे तालीमात से भी साथ बैठे रहते थे, मजलिस में बैठे रहते थे। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है मोमिन हम, उनमें से मन जो यस्तमिउ कान लगाकर सुनता है, बड़े गौर से सुनता है, बहुत इन्हेमाक से सुनता है, गोया बहुत पूरा जज्ब कर ले रहा है अपने आप में। उस तरीके से इनके लीडर्स आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते और बड़े इन्हेमाक से पूरी तवज्जो से सुनने को ये बाप से आता है, वरना चुपके सुनने को समिया आता है, उसने सुना, समिया यसमाउ यस्तमिउ इलैक, आपकी तरफ कान लगाकर सुनते, बड़े गौर से सुनते हैं। वो जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया है, इनके पास खैर नहीं है, इनके दिल में कोई खैर की रमक है ही नहीं, ये नहीं आने वाले, अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह कह रहा है कि इनके दिलों पर, ये हालांकि सुन रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, वो जअलना, और हमने बनाया, अब यहाँ डाल दिया, क्या डाला, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्ना, पर्दा डाल दो। जमा है ये सीगा, पर्दे डाल दिए हैं हमने उनके दिलों पर, अन के यफ़क़हू, वो समझे। अब ये देखो, ये थोड़ा समझने की बात है, अन यफ़क़हू के समझे, हमने पर्दा डाल दिया है कि वो समझे, यानी कि वो ना समझे, पर्दा डाल दिया है इसलिए कि वो ना समझे। अब यहाँ हमें ऐड कर लेना ना, उर्दू में इस तरीके से आता है, नहीं ऐसा भी यूज करते हैं हमें, हमने पर्दा डाल दिया है उन पर कि वो देखें, यानी वो ना देखें, वो ये टाइप का ये है उस्लूब है, ये अरबी का उस्लूब है, इस तरह हम भी यूज करती हैं, उर्दू में भी यूज करती हैं। तो यफ़क़हूहु कि वो ना समझे, हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है। वो फी आज़ानिहिम वक़रा, एक तो दिलों पर पर्दा डाल दिया, समझ बूझ नहीं हो सकती, सुनने के वास्ते भी अल्लाह ने क्या कर दिया, आजान कानों पर वखरा डाल दिया, बोझ डाल दिया, वो क्या शीशा पिघल के डाल दिया या कोई भी बोझ डाल दिया अल्लाह ने, उनके कानों में आवाज नहीं जाती, वो सुन भी नहीं सकते। आ रही वो बैठ रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सुन रही भी, लेकिन समझते नहीं नो, क्योंकि अल्लाह इनको नहीं समझने दे रहा है। अल्लाह को मालूम है इनो कितने पानी में है, क्या कर रही इनो, कई को आई, वो कबीले के लोगों की जबान बंदी के वास्ते, उनको एक धूल झोंकने के वास्ते आई। इनका मकसद ये नहीं है कि ईमान समझे, ईमान समझ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने के वास्ते आए नहीं है इनो।
क्या वास्ते आई अल्लाह को मालूम है। तो दोनों तरफ से अल्लाह इनके खुलूब भी बंद कर दिया, इनके काना कान भी भी सुनने बंद से कर न रहे। वो यरो, और अगर इन शर्तियां है ने, आगे इन शर्तियां नहीं आ रहा है, कोई और मतलब भी आ रहा है, तब मैं समझाती हूँ। यहाँ ये देख लिया डिफरेंस के वास्ते मैं आपको आपकी तवज्जो मबजूर कर रही हूँ। इन शर्तियां है अगर इल्ला आ गया तो, इनके साथ इल्ला आ गया तो नहीं के मफहूम में आता ही है। इनके बाद फॉलोड बाय इल्ला, इन फॉलोड बाय इल्ला इज नफी, नहीं के मतलब में। वो मैं आपको आगे बोलती हूँ, थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। इन अगर यरो देखें कुल्ला तमाम आयातिन निशानी ला युमिनुना ना ईमान लाएंगे बिहा उस पर, हत्ता यहाँ तक के इज़न जब जाऊ का आपके पास आते हैं, युजादिलूनक, जादला युजादिलू उर्दू में भी यूज होता है। उर्दू में कैसा यूज होता है ये? जदल, जंगो जदल यूज करती, मालूम है आपको? उर्दू में हाँ एक कंपोजिट वर्ड यूज करते हैं, जंगो जदल। आर्ग्यू हाँ, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, झगड़े लड़ाई भी हो करना, सकती है, आर्ग्यूमेंट भी हो झगड़ सकता है। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात है, मुजा बाबे मुफाइला से आ रहा है, जादला युजादिलु, फाअला मुफाइलु, और यानी आपसी झगड़े या आपसी आर्ग्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के वास्ते ये वर्ड यूज होता है। ये आपको किसी दूसरी जबान में नहीं मिलता। ये यही है जो बाप से गुजरता है और उन्हें पूरा मफहूम दे देता है। आपको ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत नहीं, पूरा एक पैराग्राफ लिखने के होता मफहूम आपको समझ में आ जाता है। ये जबान ही ऐसी है कि कूजे में बंद करना समंदर को उसके मुतरादिफ है। छोटे वर्ड में अल्लाह बहुत बयान कर देता है। अल्लाह समद, आप समझ लीजिए, समद को आप बयान करना बोले तो एक पेज बोलना आप, नहीं क्या? लेकिन अल्लाह ये एक वर्ड में बयान कर देता है। ये तो हुआ, ये इस्म हो गया। लेकिन जो फेल में आता है, ये जो अबवाब से पास होता है, इसमें भी ये असर है कि आप इमीडिएटली मफहूम समझ जा सकते हैं। तो अल्लाह कह रहा है आपके पास ये आते हैं झगड़ने के वास्ते, युजादिलूना का, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने, काउंटर आर्ग्यूमेंट करने, बेसलेस चीजें बोलने के वास्ते, आपका दिमाग खराब करने, आपको परेशान करने के वास्ते आपसे झगड़ते हैं। ये युजादिलूनका यक़ूलू कहते हैं अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने जो कुफ्र किया, इन हाजा, अब यहाँ देखिए, इन फॉलोड बाय क्या है? हाजा, इन हाजा, हाजा इल्ला ये है नहीं, लोग, उसके बाद ये नहीं इल्ला, क्या इल्ला है नहीं, इनके बाद इल्ला है। तो है, इन्हें इन जो है, इन इससे पहले आपको क्या दिया मफहूम? अगर का मफहूम दिया, शर्तिया मफहूम दिया नहीं। अब यहाँ जी नहीं, यहाँ इन इज फॉलोड नहीं, बाय इल्ला, बीच में एक वर्ड आया आ रहा है हाजा, ये एक मानी है होता चाहिए ये बोल को, लेकिन आप उसके बाद का वर्ड लीजिएगा इल्ला। इल्ला, अगर इन कम्स फॉलोड बाय इल्ला तो इन मफहूम देता है नहीं का, नहीं नफी का मफहूम देता है। इन नहीं, हाजा ये, इल्ला मगर, सिर्फ क्या है? असातीरुल अव्वलीन, असातिर इसका रूट वर्ड है सतरा यस्तुरु, उर्दू में भी सतर ही है। लिखती ना एक के बाद एक सतर कहानी, लिखते जाती नहीं, आप पेज ये लिखते कहानी जाती नहीं। लिखना, हाँ, कहानी। अब एक के बाद एक मजमून भी लिख सकती हैं, मजमून कहानी भी लिख सकती हैं। अब यहाँ कहानी के मफहूम में है, यानी ये कहानियां ही आप जो भी बयान कर रहे हैं, ये अगलों की पिछलों की कहानियां हैं। क्या है इसमें हकीकत, क्या सुनना है? तो ये इनो आपसे झगड़ा कर रही, आपके पास आ गई, यस्तमीउ का वर्ड आया, बैठ रही, सुन रही, सब कर रही, उसके बाद आखिर में जाने के वक्त क्या शोशा छोड़ के जाती है? कुछ भी नहीं है हाँ भैया, ये सब कहानियां पिछलों हैं, की कहानियां हैं, कुछ भी नहीं है। अब क्या हो गया? लोगों के ये जो कबाइल के इनके मेंबर्स थे, कबीले वाले थे, इन्हों क्या समझते हैं? भाई हमारे लोग दानिश्वर लोग सुबह से शाम तक लगे हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितना सुना होगा, कितने तालीमात उनके सुने होंगे, क्या क्या उनके बयान सुने होंगे। अब उनमें कुछ दम नहीं है, खम नहीं है, अगर उन्हें बोल रही तो सही होगा ना, चुप क्या कहीं को बोलती उन्होंने? ऐसा उनको मत मारना, उनकी अक्ल खराब कर देना, मत मारना बोले तो एक वर्ड बहुत अच्छा है उर्दू में, इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकती।
मत मारना मीम बोले थे क्या? मीम थे मीम थे हाँ? मत हाँ स्पेलिंग मीम थे हाँ मीम। उनकी मत मारी गई है, आप लोग बोलती है लत उसकी मत मारी मत गई है भाई। लग हाँ, यूज क्या बोले तो उसकी अक्ल पूरी माऊफ हो गई है, उन्हें समझ नहीं सकता, उसकी बात समझ में आने की वो कैपेसिटी ही खत्म हो गई है। अब इन्हों क्या करते हैं, उनकी मत मार देते थे। ये वर्ड को मैं दूसरे अल्फाज में समझा नहीं सकती, ये वर्ड का ही ट्रांसलेशन मैं कर देती हूँ। मत मारना बोले तो उसकी अक्ल को एकदम उसे सुला देना, उन्हें अक्ल काम उसकी करना ही नहीं, उन्हें अक्ल यूज करने के काबिल ही नहीं रहना, ऐसा ही तो करते थे ना। अब ये जो अब आप देखिए, यहाँ हमारे पास एग्जांपल लीजिएगा, ये जो आला ब्राह्मण लोग है ना, इन छोटे लोगों की क्या कर रही बोल रहा हूँ, इन्हों भी मत मार रही हैं, मालूम है? ये कल की पुराना जो है वो एक पुराना है इनके पास, उपनिषद से ये जो वेदास वगैरह है ना, उसमें एक पुराना है इनके पास से, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लुक है। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारे ही बम्मन फ्रेंड्स बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, ये पढ़े तो घबराहट होती है, परेशान हो जाती, जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते। क्यों? इसमें सब आखिरत का है, इंजार है, तनबीह की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि तुम ऐसा करोगे तो आखिरत में तुम खसारे में पड़ जाओगे। तो ये इन लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। और ये जो आला तबके के ही ना, ये ब्राह्मण लोग जो वेदास उपनिषद से ये कुंजी क्या ये शादियां ब्याह ये सब कराती ना, इनके बगैर शादियां नहीं होते इनके, आपको पता है? इनके बगैर शादियां नहीं होते। ये जो इनके वो ऊपर का एक खाली करके वो जो बन के आते हैं ना, उन्होंने खाली एक लुंगी पहन के जो आती है घेरू कलर की, उन्हों ही आती है, पुरोहित जिसे बोलते हैं उन्हों शादियां कराना, तो उनके अलावा कोई शादियां नहीं करा सकते। हेलो, आज हमारे में भी बोलती ना। हाँ ನಾನು 1:30 ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ। क्या बोले? आजकल हमारे में भी बोलती हैं कुरान नहीं समझ सकते घर को, हाँ हमारे हाँ, में भी तुम्हें है आपको वो। पढ़ो बोलते हैं। हाँ ये भी हाँ नहीं, सुनिए। हाँ समझना तो एक बहुत बड़े आलिम के साथ बैठना, ये सब तुम्हें समझने का नहीं है घर को। वो लोग तो ये हमारा थोड़ा कम है, वो लोग तो पढ़ने ही नहीं देते। देते तुम्हें हाँ, उन्होंने पढ़ो, टच नहीं कर सकते ये घर को, बोला टच नहीं उनके कर लो सकते। कैस्ट वाले हमको। हाँ हाँ, टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सर से पैदा हुई ब्रह्मा के, तुम्हें सो भी पावा से हाथा से इससे पैदा हुई सो, तो तुम्हारा तखद्दुस नहीं है, हमारा तखद्दुस है, हमें बहुत आला, हमें सर से पैदा हुई। तो ऐसा ये मैं मत मारने के वास्ते समझा रही हूँ आपको, ऐसा मत मारना, उनकी जो अक्ल को माउफ कर देना, अक्ल ही नो यूज नहीं कर सकना। ऐसा कर को लाए थे, लेकिन अब अक्ल इतनी बढ़ गई है इन लोगों की, यहाँ पर 18% रिजर्वेशन लेकर बैठी, अब उनका चलता है। अब उन्होंने अगर अगेंस्ट हो गए तो इनका तख्ता उलट जाता है, मालूम हो गया उनको ये लोग क्या कर रही है इनके साथ घर को। बहुत से है ड्राविडियंस, ये जो अच्छे बड़े शूद्रास उन्होंने भी, हाँ अच्छे वेल वेल लर्नड हो गए, उनके लीडर्स हो गए हाँ हाँ उन्होंने। हाँ, हमारे हाँ साथ उन्होंने थे अच्छा बहुत से, गाइड बहुत करते हैं उन जानकारी लोग हासिल कर ली, उनके और कौम को। बहुत अच्छे अच्छे पोस्टा में आ गई ना, 18% हाँ कोटा हाँ दे डाली ना, तकरीबन बिल्कुल। 1/5। हाँ, उससे 5 महीने का ये तो नो कितना हो गया ना। उससे जिनको तकलीफ शुरू हो गई सो बमना हाँ को बहुत तकलीफ शुरू हो मामूली गई। उन्हों लोग क्लर्क करे जाते गते नो आईएएस ऑफिसर रहता गते, हो सही बात है, कहाँ की वो चले बहुत जाती है। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत टॉप उनको मोस्ट पोजीशन में चले जाती है, उनके नीचे हाँ आ जाती। उससे उनको तकलीफ होती है, उनको हमें सुनना ना कर को। हाँ हाँ, पहले उन्होंने एक साथ ही ज्वाइन हुए रहती, पहले असिस्टेंट बिल्कुल डायरेक्टर बनकर भी ज्वाइन हुए रहती, उसके बाद हाँ कहाँ डायरेक्टर लेवल को चली जाती, इन्हों डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं बनते। नहीं बनते बराबर। उनके गैर में, उनके अंडर में इन्हों काम करना, ये हालत हो गई है अब इन लोगों की। यहाँ ये सरदार भी ऐसा ही करते थे, इन लोगों की मत मार देते थे, नहीं भाई कुछ भी नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा, कुछ भी नहीं है, कोई दमखम नहीं है, वही पुराने कहानियां बयान करती, वही पुराने किस्सा, पारी ना किस्से देरी ना किस्से, कुछ भी नहीं इसमें, ऐसा ये लोग मत मार देते थे उन लोगों की। यो जादिलूना का वो झगड़ा करते हैं, यकूलू कहते हैं, अल्लाजीना जिन लोगों ने कफरू कुफ्र किया, वो कह रहे हैं क्या, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलिन, कुछ भी नहीं है, ये पुराने किस्से, पिछलों के किस्से हैं, ये कुछ और नहीं है। वो हम यनहौना अनहु व यनऔना अन, ये दो में डिफरेंस देखिए। अब आप डिफरेंस एक नोट कर लिया कि
इन कब कब आता है? इन अगर इन यूजुअली शर्तिया ही होता है, अगर में आता है। इन कुंतुम मोमिनिन, अगर तुम मोमिनिन हो, एक आयत है। अंतुम अल्लाह, तुम ही आला रहोगे। इन कुंतुम मोमिनिन, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे मोमिन हो तो तुम ही आला रहोगे, तुम ही फलाह पाओगे, तुम ही सरदार रहोगे, दुनिया में भी तुम्हारी ही बरतरी होगी। नहीं है उस वास्ते ठोकरें खा रही, मुसलमान नहीं है उस वास्ते ठोकरें खा रही। तो अल्लाह शर्तिया इन शर्तिया है। अगर वो उसके बाद इल्ला आ गया तो इन नई के मफहूम में आ जाता है। इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलिन, नहीं है ये मगर, अब इन नई के मफहूम में आ गया। अब यहाँ देखिए एक और वर्ड आ रहा है जो आपको बाइक वक्त समझना है। यनहौना, नहा यनहा रोकना, रुकना, वो हम और वो यनहौना रोकते हैं। नहीं अनिल मुनकर का ही वर्ड है ये, नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना है ना, बुराइयों से रोकना, जी रोकना। हाँ वही वर्ड है ये। अनहु, उससे रोकते ही, ये हु ज़मीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने से रोकती, या किताब भी ले सकती हैं, कुरान से रोकती। वो यनऔना अनहु, यनऔना, या को छोड़ डालो, मुजारे का सीगा है नून हमजा और होना। ले जाना, कन्नी कतराना, उर्दू में वर्ड कन्नी कतराना यानी भागना, राह फरार इख्तियार करना, जमीन छोड़ डालना, वहां बैठना नहीं। किसी की मजलिस में कोई है, आप उसे नहीं उसके साथ बैठना चाहते तो आप क्या करती, उसके नजरों से बचकर भाग जाती, नहीं भागना, राह फरार इख्तियार करना। वो वर्ड ऐसा यूज होता है ये, यनऔना, यनऔना, यनहौना बोले तो रोकना, रोकना। यनऔना बोले तो कन्नी कतराना या उसे राह फरार इख्तियार करना, वहां से भाग जाना, भागते हैं। अनहु, पहले तो इन्हों क्या करती, रोकती दूसरे को, और क्या करती, खुद भाग जाती वहां से। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कर रही, कोई मजमुआ जमाए तो वहां से भाग जाती, दूसरों को भी रोकती, पहले तो दूसरों को रोकती। और इन युहलिकुना, और नहीं इन, अब यहाँ भी देखिए इल्ला है, उस वास्ते इनका मतलब आप करेंगे नहीं, और नहीं युहलिकुना, हलाक करते हैं, इल्ला मगर, मगर या सिर्फ कर को भी ले सकती है आप। अनफुसहुम, किसे, अपने आप को नुकसान कर रही, दूसरों को भी रोक रही है, खुद भी भाग जा रही है। किसका नुकसान कर रही, खुद का नुकसान कर रही है ना। खुद का। पाँव रख कर कुल्हाड़ी मार रही, गड़ा खोद रही, खुद ही गड़ा खोद रही, खुद ही गिर रही, जहन्नम में जाकर गिरने वाले। क्या कर रही, किसका नुकसान हो रहा है, हुजूर का नहीं हो रहा। तो अपने आप को ही, अपने नफ्स को ही ये हलाक कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट ये जरर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो माया शुरून, शऊर भी नहीं है। शऊर बोले तो उनको ये ख्याल भी नहीं आ रहा है कि इन्हों क्या समझ रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले की आयत को जोड़िए, ये मुजादिला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन क्या समझ रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रही हैं, खुद भी रुक जा रही, दूसरों को भी रोक रही, बहुत बड़ा काम करते रही, जिगर गुर्दे का बड़ा ये इसका काम कर रही ना, बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम कर रही को खुद समझ रही। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इनको पता भी नहीं चल रहा है कि इन्हों खसारे में पड़ रही, अपने जान को हलाक कर रही। युहलिकुना अनफुसहुम, ये कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, मगर युहलिकुना, नहीं कर रहे हलाक, मगर खुद को हलाक कर रहे हैं। ओ माया शुरू, जानते भी नहीं, उसको ख्याल भी नहीं है, जा रही जहन्नम की तरफ, रास्ता पकड़ी जहन्नम का, उनको ख्याल भी नहीं है, इसका शऊर भी नहीं है। उर्दू का वर्ड शऊर, शेर भी इसी से है, ख्याल। शेर कैसा बनता है, एक ख्याल गुजरता है, शायर के दिल में एक ख्याल गुजरता है। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, जो मैं रात को शायरी करता हूँ वो मैं दिन को लाख कोशिश करूं उसमें एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं कर सकता मैं। यानी एक ख्याल जो अल्लाह देता है। अच्छे शायरा भी हैं, वो थोड़े दूसरे भी हैं, उसको नजरअंदाज करे तो अच्छी शायरी जो अल्लामा इकबाल की है, पूरी क्या है, वो कुरान की तफसीर है। वो खुद कहते हैं, मेरा जो कलाम है, मेरे जो अशियार हैं, ये कुरान की तफसीर है। अगर ऐसा ना हो तो अल्लाह मुझे अजाब में मुब्तला कर दे। वो खुद ही अपने आप को अपने आप पर डाल रहे, सजा के मुस्तहक करार दे रहे, अगर ये तफसीर नहीं है तो, कुरान की तफसीर नहीं है तो। यानी ख्याल,
मैं ये समझाना चाहती थी, यशऊरून शऊर, शऊर बोले तो ख्याल, उनको ख्याल भी नहीं है उसका, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो खुद को हलाक कर रही, गड्ढे में गिर रही, नहीं मालूम हो रहा है उनको। वलौ तरा इज़ा उक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। अब क्या फायदा, अब चले गए, गड्ढे में गिर गए। अल्लाह कह रहा है कि काश तुम उस वक्त उनकी हालत देख सकते। किसको कह रहा है? हमको कह रहा है अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सबको कह रहा है, देखो इनकी हालत क्या हो गई है। अगर उस वक्त तुम उनको देखते, उनकी क्या हालत है, उन पर क्या गुजर रही है, तो जब क्या होता है उन पर, वो दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे, दोजख के दहाने तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। उस वक्त वो कहेंगे अब गिरना है दोजख में, तो उस वक्त हाथ का कफे अफसोस मलेंगे, हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे, कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी पेश आ जाए कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाए। अल्लाह किसी तरह हमें दुनिया में भेज दे और अपने रब की निशानियों को हम नहीं झुटलाएंगे और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह हमने फिर दोबारा भेज दिया दुनिया में, हम कभी भी अब नहीं ये करेंगे, हम नहीं झुटलाएंगे अल्लाह की आयत को। अबू जहल भी वही करेगा ना। अब ये दुनिया है, दारुल अमल है, और आलम गैब जो है पर्दे में है। अगर पर्दा चाक होया, कब चाक होता है? जब इजराइल आती। इंसान के वास्ते पर्दा कब चाक होता है? जब इजराइल आती। मजमूई तौर पर कब चाक होता है आलम गैब? जब रोज़े महशर बर्पा होता है। जब इंसान के पास इजराइल आती है तब भी मालूम हो जाता है, पूरा मालूम हो जाता है, आप कहाँ जाने वाले ही, क्या हशर होने वाला है, सब मालूम हो जाता है। वो आता है ही वैसा। मुत्तकी परहेजगार हैं तो खुशबू वाले और बहुत अच्छे, बारिश बहुत अच्छे कपड़े में, चमक धमक बड़ी आन बान शान के साथ आती, आसमान से यहाँ तक वो बंदे तक पूरी खुशबू ही खुशबू होती है। मालूम हो जाता है बंदे को, तभी मालूम हो जाता है, बड़ी आसानी से रूह भी निकल जाती है। वो वक्त मालूम होता है और रोज़े महशर मालूम होता है। लेकिन अब जाने के बाद उनको मालूम हो गया वहां, अब क्या फायदा। रोजे दारुल अमल तो ये था, यहाँ करते तो अल्लाह क्या यहाँ कह रहा है कि काश उस वक्त वो जो खड़े होती जहन्नम के दहाने पर, उनका हाल तुम्हें मालूम होता, तो काश तुम्हें देखते कि उन्होंने एकदम अपने आप पर मलामत कर रही, खुद पर मलामत कर रही, मजम्मत कर रही, काश हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लिया होता, हम यहाँ नहीं रहते, जन्नत में रहते थे। देखो जन्नत में जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, उनके साथ रहते हमने नहीं मानी, हमारी मत मारी गई थी, सरदारों ने मार दी थी हमारी मत, तो ये हालत हो गई हमारी। अल्लाह एक मौका तो अगर दे दिया, एक मौका हमें मिल जाए अल्लाह की तरफ से, तो हमें जाको ऐसा काम करेंगे, फिर हम जन्नत वाले काम करेंगे, जन्नत में ले जाने वाले अमल हमारे होंगे। ये फायदा नहीं, वक्त गुजर गया, 3 घंटे का एग्जाम हो गया, बाद हाथ मले तो क्या फायदा। बल बदा लहुम मा कानू युखफूना मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लादू लिमा नुहू अनहु व इन्नहुम लकाज़िमून। बल बदा लहुम, हकीकत क्या है, इन फैक्ट महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो इस वक्त बेनिकाब होकर उनके सामने आ चुकी है। पहले उन्होंने समझना नहीं चाहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने ना बोल रहे, पूरा मक्की दौर में 3 ही चीजों पर जोर दिया गया है। एक अल्लाह की वहदानियत है, किसी को शरीक नहीं करना, कुफ्र शिर्क से नफी की गई है, पुरजोर नफी की गई है। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो, उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ, ये है। तीसरा क्या है, आखिरत, तुम्हें जरूर आना है। ये तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट, तुम्हारा जो तस्वुर है कि मर खप गए बात खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह उठाएगा, फिर तकलीफ होगी, फिर सवाल जवाब होगा, उसके बाद फैसला होगा। ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई, बाद एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन दोज़ख जन्नत, यही दोज़ख कायम होगी और जन्नत ऊपर होगी। उसे दर्जात कहा जा रहा है, इसे दरकात कहा जा रहा है इसे। तो ये खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ ये राज तो खुल जाएगा उस वक्त, बेनिकाब होकर उनके सामने सारे राज सामने आ जाएंगे।
मालूम हो जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा करते थे सच था। वरना अगर उन्हें पुरानी जिंदगी की तरफ यानी पहले दुनिया की जिंदगी की तरफ से वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था। अल्लाह कह रहा है ये क्या कहा, बल बदा लहुम, बल के बदा लहुम जाहिर हो गया, बदा युब्दिउ जाहिर हो जाना, सब खुल जाना उन पर, माँ कानू यख्फूना जो वो छुपाते थे, नहीं पसंद करते थे, बोलना भी नहीं पसंद करते थे, सुनना भी नहीं पसंद करते थे, मिन कबलू इससे कबल, वलो और अगर रुद्दू, रद्दा युरुद्दू वापस लौटाना, वापस जाएं, अगर हम उन्हें भेज भी दे वापस जाए भी, लादू आधा यादू रिपीट करना, तो फिर वे करने लगेंगे, वही काम करने लगेंगे। अब जो शिर्क कर रहे हैं ना वही काम करेंगे। अल्लाह कह रहा है उनके इससे सरिश्ते अल्लाह वाकिफ है। निमानुहु जिससे वो रोके गए थे वही काम दुनिया में भी जाकर करेंगे, अनहु उससे जो रोका गया था वही काम में मुब्तला हो जाएंगे। फिर ये इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन ये झूठ बोलने वाले हैं, झूठ करने वाले हैं। वो खालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन, आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा ना उठाए जाएंगे। वो खालू इस पर मद आ रही है, यानी बड़ी शिद्दत से शद्दोमत के साथ बोल रही, क्या बोल रही, इन्ही अल्लाह हयातुन दुनिया, बस यही एक, यहाँ भी आया देखो, इन नहीं है, इल्ला मगर, हयातुन दुनिया दुनिया की हयात है, वमा नहनु बिमजबूर, बस यही ये दुनिया की जो जिंदगी है वही जिंदगी है, वमा और नहीं, नहनु हम भी मबूसीन, मबूस बासा यबूसु से यानी उठाया जाने वाले, फिर हमें खड़े करने जाने वाले, उठाए जाने वाले हम नहीं हैं, फिर नहीं होता ऐसा कुछ भी, बस ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली। वलौ तरा इस वक़िफ़ अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़, अल्लाह पूछेगा वहां क्या ये हक नहीं है क्या, पहले तुम झुठलाते थे ना, अब हमारे सामने आ गए हो ना, ये सूरह कहफ में भी आ रहा है, आ गए हो ना तुम हमारे पास से, जैसे कि तुम्हें पैदा किया था पहले, क्या है वो वर्ड, यौम अव्वल मर्रा क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़ क़ालू बला रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वलो तरा अगेन कहा जा रहा है कि अगर कोई देखे, उनकी तरफ देखे, तुम देखोगे, इस वक़िफ़ू जब वो खड़े होंगे, खफ खड़े होना, जब वो खड़े खड़े किए जाएंगे, वक़िफ़ू मजहूल है ये, खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम अपने रब के सामने, खाला वो फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा, अलैसा हाज़ा बिल हक़ क्या ये हक नहीं है क्या, इसे झुठलाते थे ना तुम, अल्लाह के पास जाना नहीं है, अल्लाह फिर तकलीफ नहीं करेगा क्या, ये हड्डी से तकलीफ करेगा क्या, हमारे आबो अजदाद को भी उठाएगा क्या, हजारों साल हो गए मर खप गए वो, हाँ ये अब बोलो, अब ये हक नहीं है क्या जो तुम्हें बताया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे रसूल ने बताया था, हमने किताबें नाजिल किया था, क्या ये हक नहीं है, अलैसा हाज़ा बिल हक़ क्या ये नहीं है, सच नहीं है क्या, कालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं अल्लाह, वो रब्बिना कसम तेरी अल्लाह, वो कसमिया है, वो रब्बिना अल्लाह तेरी कसम, हाँ सच है, देख लिया, सब कुछ देख लिया, खुले आंखों से देख लिया, 14 तबक रोशन हो गए, हाथों के तोते उड़ जाएंगे, खाला वो फरमाएगा फज़ूक़ू तो चखो तुम, अल अज़ाब अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो ये जो तुम झुठला रहे थे ना उसका अज़ाब अब चखो। कह रहा है अल्लाह काश वो मंजर, वो वक्त, वो नक्शा तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है जिसको तुम झुठला रहे थे अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं है, पारी ना किस्से हैं, देरी ना पिछलों की कहानियां हैं, ये कह रहे थे ना, अब आ गया सामने हक, अब ये कहेंगे हाँ अल्लाह ये हमारे रब, वल्लाह वल्लाही यही है, ये हकीकत है, हमें सब कुछ नजर आ गया, वो फरमाएगा, अब अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो आपने अब जो इनकार किया है तुमने, हकीकतों को झुटलाया, तो इस हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें दोज़ख से बचाए,
جنت میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے ساری امت مسلمہ کو، آمین۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔